I welcome to all of you in the first summer session of Functional English. Before starting the lecture, I want to introduce myself. My name is Johannes and my qualification is Masters in Communication Systems and Network. I have done Bachelor's and Master's both for 100 University. I have assigned this course to teach you the basic aspects of English, how to learn English and how we can speak English, how we can improve our grammar for learning and writing. English language basically a skill which you can develop in yourself to utilize this language in any place. So I want to cover or I want to highlight the basic topics of the course outline that we will cover in the whole session. In the starting sessions, we study about the basic concepts of English language, alphabets, words, phrases, and clauses. We will study about their differences, vocabulary building, and how you can improve your English. Making effective self and care introduction. It will be only possible if we take physical classes. So I will make your team and we will take introduction. We will play some games that enforces you to speak in English or present yourself in English. Effective listening. What are these skills we will discuss? Articles, prepositions, and punctuation. These are the same as that you have studied in your school, college. So it is a basic review in university days. Creating expressions, noun and verb understanding, adverbs, adjectives. These all are parts of the speech. Preposition tenses. This is the main part or main focus in our midterm. Tenses, parts of the speech. Then we have the invitation speech, like how you can write any invitation letter or invitation email, and how you can respond or any other person respond if he or she receive invitation. I will also teach how to write and how you can write effectively. What are the rules for writing, paragraph writing, letter writing, public speaking skills? What you have to develop in yourself for facing public. And obviously your presentation skills must be strong, then you can face the public. After 8 weeks or after covering all 16 lectures, we will have midterm. Midterm may be online or maybe physical, so get ready yourself for both modes of examination. Then some advanced learning starts from here. What is advertisement? What are the types of advertisement? How we can advertise any product? What are the common errors in English that we mostly do while speaking or writing English? And how we can improve these errors? Active and passive voice, slangs and jargon. What is the difference and what are these words, slangs and jargons? Dialogue writing. It is also an important part of English literature. Dialogue writing is used in a story or in drama or play or in journal or language. Comic strips, interviews, how we can conduct interviews and how we can give interviews. How we can prepare ourselves for giving interviews. Common text, which is used in English and it has some difficult words that you have not listened before. Formal email writing, comprehension by reading or comprehension by picture. Converting an event into a short story. An event happened, but you don't know a real story. How you investigate that event and how you will write that event into a story. Logical reasoning, message, direct, indirect, narration, tips for presentation. How you can give an effective presentation. Write some of its tips. We will discuss these tips, and I can ask these tips in the
examination. So this is the little or short overview of the outline. Now move towards the first lecture. I hope in the coming section you will all join the lecture so I can also take your interview if I know your level or your level of knowledge and your semester. So I have the idea that in which level I have to teach English. In the lecture 1 and lecture 2 are very simple. Just we need to differentiate or understand the basic concepts of English. If you want to learn any language, either it is English, it is Arabic, Chinese, or Japanese, you have to focus yourself on the grammar of that language. And after you learn the grammar, then you try to speak that language in front of other people. For practice, you try this language in front of those people who don't know this language. Means the person who does not know the English properly, you can speak English on in front of herself or himself to improve your English. The objective of the first lecture, uh, course summary, is a 2 credit hour course and basic purpose or basic aim of this course to develop English language proficiency in students. First of all, I want to ask that why we learned this course in the first semester. Because English is an international language. You have all your courses in English. You have to give all presentations in English. You have to read research paper, make reports, or use English language. That's why we introduce this course in the first semester that you can improve your English skills and study well all subjects. So these are the objectives of the first lecture: to define functional English, ingredients of basic language skills, introducing yourself or someone, that how we can introduce anyone in front of others, difference between letter, alphabet, word, clause, and phrase. Methods to increase vocabulary building. How you can improve your English? If you know the huge amount of vocabulary, so you can speak well. So we will discuss or we will see some methods which will help to improve your vocabulary. Different words perform different functions in a sentence. The study of these functions is called functional English. It equips students with the necessary knowledge, skills, and understanding to use and apply English in everyday life. Some words can perform different functions, different occasions. अब अगर मैं इन सबको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो डिफरेंट वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मतलब हर वर्ड का हर फंक्शन हर सेंटेंस के अंदर अलग मतलब हो सकता है. तो एक वर्ड किसी सेंटेंस में किसी और पर्पस के लिए यूज होगा और वही वर्ड दूसरे सेंटेंस में किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग, तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ने से ही नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग है. आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो बुक आपको लिखनी मिल जाएगी वो आप उससे नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट किया जा चुका है तो हमें मोस्ट लर्निंग मटेरियल किसमें मिलता है? इंग्लिश में मिलता है. आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में बाहर मुल्क के पढ़ने जाए तो आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होगी तो इसलिए आपको इंग्लिश में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा. दैट्स व्हाई वी लर्न इंग्लिश. Some words can perform different functions on different occasions. अब यहाँ पे एक वर्ड को फोकस किया गया है जो कि है प्रेजेंट. द प्रेजेंट सिचुएशन इज अलाउड. इसके अंदर जो प्रेजेंट का वर्ड है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, यानी खासियत बतावे की सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं. प्रेजेंट का यहाँ पे क्या मतलब होगा? करंट सिचुएशन, मौजूदा हालत जो है, अलार्मिंग सिचुएशन. दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट यूज हो रहा है एज अ नाउन. सेंटेंस के आखिर में आ रहा है ये सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गए, ये नाउन. ठीक है. आई बाउट अ प्रेजेंट. प्रेजेंट का दूसरा मतलब क्या होता है? गिफ्ट. मैंने एक गिफ्ट खरीदा है.
Then we have another use of present. PM will present the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ कोई तकलीफ है उसमें तशरीफ लाएंगे और लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट का वर्ड भी यूज हो सकता है. प्रेजेंट मतलब उनको देना. तो यहाँ पे एक प्रेजेंट के हमने 3 यूजेस देखे. एज एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, एज अ नाउन और एज अ. जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये कह रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ये अपना चेंज कर रहा है, तो वैसे वैसे इसकी मीनिंग भी चेंज हो रही है. यहाँ प्रेजेंट का मतलब था करंट सिचुएशन, यहाँ इसका मतलब है नाउन, यहाँ इसका मतलब है वर्ब कि वो ये काम करेंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा इसका मतलब एज अ वर्ब था. How do we learn a language? If we have commitment with ourselves that I have to learn this language. If we talk about the Arabic language, हम ये तहैया कर लेंगे हमें जो है कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ना है, कुरान पाक की अरबी के मायने सीखने हैं. कि अगर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ही क्या मायने है. ये अगर लिखा हुआ है काफ हा या आइन स्वाद, इसका क्या मतलब है. ठीक है, इस तरह से कुरान मजीद के मुख्तलिफ अल्फाज कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ ऐसे ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी, हमें ये पता करना है कुल का क्या मतलब है, अहद का क्या मतलब है इस लाइन के अंदर, या अर्रहमान का क्या मतलब है इस लाइन के अंदर. वो अपनी कमिटमेंट है. आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे कि हम इसको वर्ड टू वर्ड सीखेंगे, इसकी ग्रामर सीखेंगे. अरबिक भी कुछ स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाती है. इसके अलावा कुछ बुक्स वगैरह भी हैं जो आपको कुरान करीम सीखने में हेल्प करती है. आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी लैंग्वेज सीखें अपने आप से कमिटमेंट रखेंगे आपको उस लैंग्वेज को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना है. पॉजिटिव एटीट्यूड रखें इसकी तरफ. अपॉर्चुनिटी, जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस लैंग्वेज को यूज़ करने के आप यूज़ करें और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी हासिल करें. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन इशू होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज का इशू होता है. अब आपके साथ 2-3 लोग और हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और आप जिस कंट्री में गए हैं वहाँ जो शॉपकीपर है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप फॉरन से वो अपॉर्चुनिटी गेन कर लेंगे, आप इंग्लिश में बात करके समझ लें और बाकी 2-3 लोगों को भी हेल्प कर लें. या फिर इस तरीके से कि हम सऊदीया जाएँ उम्रा वगैरह करने, आपने थोड़े बहुत अरबी की जो है लाइनें सीखी हुई है इतनी कि आप किसी शॉपकीपर से शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहाँ आप ये अपॉर्चुनिटी गेन कर लें. प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करते रहें जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं. गाइडेंस लेते रहें और अगर जितनी इंफॉर्मेशन आपको इसके हवाले से दूसरों को गाइडेंस देते रहें. मटेरियल ऑफ स्टडी आपके पास होना चाहिए. इट विल बी हेल्प you for learning best and quick. What are the interactive tools for learning a language? पेयर वर्क, आप पेयर वर्क में काम करें. जिस तरह अगर हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले थ्योरी क्लास होती है, उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास होती है, जो शायद कॉम्प्रिहेंसिव क्लास कहते हैं, क्या कहते हैं सही से याद नहीं. तो ग्रुप में उठा देते हैं, कोई भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिल जाता है और सब इसके ऊपर बोलते हैं. सब सीखने आए होते हैं इंग्लिश, किसी को बोलनी नहीं आ रही होती उस टाइम पे, तो हर कोई जो है बस टूटी फूटी अल्फाज में बोल रहा होता है, दूसरा बंदा इसको समझ रहा होता है. ग्रुप में वर्क करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कोई स्क्रीन करें कुछ समझ में आए तो, एक्टिविटीज परफॉर्म करें और ऑथेंटिक मटेरियल. These all are the tools for learning any language. Activities are most important. सब अगर आपने ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे हैं तो उसकी कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें. ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू देना लेना सीखा है तो 2-3 लोग साथ में बैठ जाएं, इंटरव्यू पैनल बना लें और इंटरव्यूज लेना शुरू कर दें. So these all are the activities that will be helpful for you. Ingredients of functional skills are listening, speaking, reading, writing, application of all professional life. क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आप सुने, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा बोलेंगे. इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि कोई छोटा बच्चा है तो वो दुनिया में आता है तो उसको बोलना नहीं आता, ठीक है, लेकिन क्या नाम है वो सुनता है लोगों की बातें. जब वो लोगों की बातें सुनता रहता है उसके जहन में या उसके दिमाग में वो अल्फाज बैठना शुरू हो जाते हैं. वो थोड़ा थोड़ा करके बोलना शुरू करता है और फिर बोलने लगता है. लेकिन वो सीख के तो नहीं आया था वहाँ से, उसने दुनिया में सीखा. कैसे सीखा, सुनने से सीखा. और आप देखें कुछ लोग अगर वो बहरे होते हैं, कान में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं सुनते तो फिर वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वो अल्फाज सीखे ही नहीं होते, कहीं सुने ही नहीं होते, तो वो बोले कैसे. तो इसलिए इंग्लिश के लिए बेहतर क्या है या किसी भी लैंग्वेज के लिए बेहतर क्या है कि आप पहले उसको लिसनिंग करें फिर उसको स्पीकिंग करें. अब आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश कार्टून्स देखें, या क्या नाम है
इंग्लिश में कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको सुने उसको। अब तो ऐसा होता है कि इंग्लिश में जो प्रोग्राम आ रहे हैं साथ में नीचे जो है इंग्लिश लिखी हुई भी आ रही होती है, उसकी ट्रांसलेशन भी आ रही होती है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। चलो इनका जो है अगर एक्सेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फिर जब नीचे लिखा हुआ पढ़ेंगे उसके नीचे ट्रांसलेशन भी मौजूद होगी, तो आप उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे। इस तरह आपको दोनों चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रही कि कोर्स में आपके अच्छे नंबर, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इंग्लिश तो आपने सीखी है। अगर आप 8 सेमेस्टर तक पहुँच जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में जाना है या फाइनल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें भी आपने लोगों से इंग्लिश में ही बात करनी है। उसके लिए क्या होगा, आपके पास वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी अच्छी कैसे होगी, तो आपने लिसनिंग की होगी और आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। तो ये दोनों चीज़ें कैसे गेन कर सकते हैं, तो मैंने सबसे बताए हैं। इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश प्रोग्राम्स, और क्या नाम है, कोई इंग्लिश न्यूज़ का चैनल, जो भी आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट मूवीज देखने में है तो आप इंग्लिश मूवीज देख के सीख सकते हैं, या नीचे ट्रांसलेशन और इंग्लिश लिखी भी आ रही है उससे आप हेल्प ले लें। आपका इंटरेस्ट न्यूज़ में है तो आप उससे सीख सकते हैं। रीडिंग में है, आपको आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, या फिर जो है रिसर्च पेपर पढ़ना पसंद है, या नेट पे डिफरेंट टॉपिक्स पे सर्च करके वो पढ़ना पसंद है, तो आप वो पढ़ें, लेकिन इंग्लिश में रीडिंग, और फिर राइटिंग करके देखें उसके बारे में कुछ। एप्लीकेशन ऑफ ऑल इन प्रोफेशनल लाइफ, और उन सबको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट और ढूंढने उसकी एप्लीकेशन की क्या क्या हो सकती है। आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उस वो आपको कहाँ कहाँ एडवांटेज दे सकती है। Now we have the introduction, that how we can introduce someone in front of others. कहाँ हमें मिस्टर यूज करना है, कहाँ मिस, कहाँ मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इनफॉर्मली किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दिस इज मिस्टर अली, दिस इज मिस हानिया, शी इज डॉक्टर फरा। लेकिन अगर आप फॉर्मली किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई अब जो है आप कंपनी के अंदर कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, किसी को आपने अपनी टीम में न्यू शामिल किया है, या कोई किसी दूसरी कंपनी से प्रेजेंटेशन देने के लिए आया है, तो जो भी आपके मीटिंग के हेड होंगे या मीटिंग में जो लेके चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माय ब्रदर मिस्टर अली। ठीक है, ये किसी तरह देख के पूछना है, जो भी मीटिंग का चेयर होगा तो आपको परमिशन देगा, तो आप उसको मिस्टर अली के बाद मजीद इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इनका ताल्लुक यहाँ से, क्वालिफिकेशन यहाँ है, और यहाँ इनके आने का पर्पस क्या है। तो ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत कब पड़ेगी, चलते फिरते कॉरिडोर में कहीं किसी से मुलाकात हुई, वहाँ पे आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाने, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी कोलीग से, आप अपने ब्रदर को या अपने सिस्टर को आज यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे, तो किसी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। शी इज डॉक्टर फरा, शी इज माय सिस्टर, शी वर्क्स इन द जिन्ना हॉस्पिटल, इस तरीके से। इनफॉर्मली हाय आई एम अस्मा, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा रहे हैं, हेलो माय नेम इज असद। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मली कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं किसी मीटिंग से पहले, किसी फॉर्मल बिजनेस मीटिंग के अंदर, या फिर कोई गेट टुगेदर है लेकिन वो एक बिजनेस गेट टुगेदर है, तो वहाँ आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग टाइम में तो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, सलाम भी कर सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज मिस्टर राशिद, या मिस्टर राशिद नहीं, माई नेम इज राशिद, और उसके बारे में आगे जो भी बताना चाहेंगे क्या है। I have recently joined this firm. I have recently come back from Canada after completing my education. जिस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है, आप इससे पूछ रहे हैं और भाई सब खैर खैरियत है पूछते हैं, इसी तरह से पूछ रहे हैं। हाय, हाउ डू यू डू, माय नेम इज कुशवाहा। अच्छा, हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू। ठीक है, सब खैरियत है, दूसरा बंदे भी रिप्लाई में बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू डू, आप भी रिप्लाई में कहेंगे हाउ डू यू। किसी ने आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया अपने सिस्टर या ब्रदर का या किसी पर्सन का, तो जिससे इंट्रोडक्शन करवाया वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है रिप्लाई में। तो बोलते हैं वालेकुम सलाम, या हाय, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू, लवली टू मीट यू टू। ये सब जो है इनफॉर्मल रिप्लाइंग है इंट्रोडक्शन। फॉर्मली किस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, हाउ डू यू के बदले में आप बोलें हाउ डू यू डू मिस्टर फराज, हाउ डू यू डू बोल सकते हैं खाली।
इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, ये सब फॉर्मल वेज है। और ये सब इनफॉर्मल से, इनफॉर्मल और फॉर्मल, इनफॉर्मल आप यूज करते हैं अपने लेवल के लोगों के साथ और फॉर्मल यूज करते हैं अपने से हाई लेवल लोगों के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं अपने ही कुलीग से, अपने फ्रेंड से, तो आप इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं। फॉर्मल आप कब होंगे अगर आप बात कर रहे हैं डीन साहब से, डायरेक्टर से, एचओडी से, टीचर से, तो आप फॉर्मली इंट्रोडक्शन करवाएंगे। Then we have the difference between letters and alphabets, and you are at the university level and know very well that what is the difference between letter and alphabet. Letter is a single letter. An alphabet, when these are in the collections, so these known as alphabet. क्लॉज एंड फ्रेज, इसको अंदर डिफरेंशिएट करना शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो, वो हम देख लेते हैं। ये एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, क्लॉज एंड फ्रेज। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, अगर मैं खाली ही इज प्लेइंग लिख दूं और इन द फील्ड हटा दूं, तब भी सेंटेंस का मतलब वैसे ही वाजे हो रहा है आपके पास। ही इज प्लेइंग यानी कोई लड़का खेल रहा है, तो ये कहलाएगा क्लॉज, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज क्या होता है, कोई ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस जिसको पढ़ के अगर वो अधूरा लिखा हुआ तो हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि ही इज प्लेइंग वाली पार्ट को मैं यहाँ से कट कर दूँ, सिर्फ इन द फील्ड लिखा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। क्योंकि इस इन द फील्ड को पढ़ के मुझे कुछ समझ नहीं आया, इन द फील्ड में क्या बात है, ही इज प्लेइंग पढ़ के समझ में आ रहा है, खेल रहे, तो ये बन गया क्लॉज और ये बन गया फ्रेज। आगे हम इसके सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है और मीनिंग पूरी डिफाइन हुई है, वो क्लॉज कहलाता है। फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के कंपोनेंट्स नहीं। अब हम क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। द बॉय इज प्लेइंग जो है वो क्लॉज बन जाएगा, इन द फील्ड क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। सारा स्माइल्ड, वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, तो ये भी क्लॉज है। आई लुक्ड एवरीवेयर बट द कैट वाज गॉन, कैट वर्ब हो गया, गॉन सॉरी कैट सब्जेक्ट हो गया, गॉन वर्ब हो गया, तो यहाँ पर भी हमें क्लॉज करना है। फ्रेज में क्या है, ऑन द वॉल, इन द वाटर, ओवर द हॉरिजॉन, ये सब क्या है, फ्रेजेस है। अगर ये कहीं भी लिखे हैं तो हमें नहीं पता कि ये क्या मीनिंग दे रहे हैं। ऑन द वॉल कौन बैठा हुआ है, हम्टी डम्टी, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, वो बैठा हुआ है हम्टी डम्टी पे, या फिर ऑन द वॉल कोई क्राउ बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है, कबूतर बैठा हुआ है, क्या बात है। इन द वाटर, किसी मछली का जिक्र हो रहा है या कोई छोटा बच्चा पानी में गिर गया उसका जिक्र हो रहा है। Vocabulary building. Being able to effectively communicate both verbally and in writing is a very important skill to develop. ये बताया गया मैंने से शुरू में डिस्कस किया था कि यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बिल्डिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर इफेक्टिव राइटिंग। आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है लेकिन आपको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे जिससे आप लिखें, कैसे मिल सकते हैं, कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। वोकैबुलरी कैसे अच्छी होगी, लिसनिंग से और रीडिंग से। आपने वो अल्फाज पढ़े हुए होंगे तो आप उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। Effective communicators are highly sought after by organizations and companies. There are many ways to improve vocabulary. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं vocabulary पढ़ने के। Read, fun, repetition, speak. Read तो आपको समझ में आ गया। Fun क्या है, आपको ऐसा गेम खेलने इससे vocabulary यूज हो रही है। जैसे अगर आपको याद हो, पता नहीं आपने खेला हो ना खेला हो, अक्सर घरों में बच्चे गर्मियों में छुट्टियों वगैरह में फ्री होते थे, एक गेम होता था हमारा नाम चीज जगह खेलना। तो कॉलेज में आपके नाम चीज जगह फिर ड्रामा और कोई भी एक वर्ड चूज कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज किया ए, अब हमें ए से वो सारे कॉलेज से करनी, फिर हमने चूज कर दिया सी, सी से हमें सारे कॉलेज, तो हमें याद आ जाता था कि सी से इस जानवर का ये परिंदे का नाम हो सकता है या नहीं, सी से किसी इंसान का क्या नाम हो सकता है, सी से किसी थिंग का क्या नाम हो सकता है। इस तरह हमारी सोच सोच के वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। आप एज अ फन ये गेम खेल सकते हैं। एज अ फन क्या गेम खेल सकते हैं, आपने एक वर्ड दिया सर्कुलेट, सर्कुलेट के ई आखिर में क्या आया, ई से कोई दूसरा वर्ड बताए, फिर ई से कुछ और ई के आखिर में ऐसे एलिफेंट बोला, ई आया, ई से कुछ और बताए। डिसाइड कर लें, अगर आपको गेम को मुश्किल बनाना है तो डिसाइड कर लें कि सिर्फ सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या सिर्फ नाउन बोला जा सकता है, या सिर्फ एडजेक्टिव बोला जा सकता है, किसी थिंग का नाम हो
होना चाहिए, किसी इंसान का नाम नहीं होना चाहिए। अगर वोकेबलरी इंक्रीज करनी है तो इंसानों के नाम वाला नहीं है, मतलब क्योंकि वो कोई वोकेबलरी नहीं है, तो नाम है। आप इस तरह की चीज़ें डिस्कस करें तो वर्ब है, एडजेक्टिव है, और इस तरह से आप गेम खेलें। रिपीटेशन, आपने आज अगर 5 अल्फाज सीखे तो दिन भर में उसको यूज़ करने की कोशिश करें। आपने सीखा है कि इस वर्ड के मीनिंग ये होते हैं, इस वर्ड 5 वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं, तो उनको दिन में बार बार रिवाइज करते रहें अपने जहन में, और कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि वो वाले वर्ड्स वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं तो उनको यूज़ करें। स्पीक और फिर उन वर्ड्स को बोलें। अभी यहाँ बताया गया है कि रीडिंग के थ्रू आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। Developing an extensive vocabulary requires reading publications covering various subjects and texts, including magazines, textbooks, novels, etc. If you don't know the meaning of word, find out its meaning. Meaning find out करना भी मुश्किल नहीं है। पहले तो डिक्शनरी में इतने हिंटू ढूंढना पड़ता था, अब आप गूगल ट्रांसलेटर ऑन करें, आपको मीनिंग पता चल जाएगी। मेकिंग इट फन का मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मैं फिजिकल क्लास लेती थी तो हमने एक दो गेम्स किए थे, जिससे स्टूडेंट्स जो है अपनी वोकेबलरी इंक्रीज कर रहे थे। रिपीटेशन का भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आपको थ्रू आउट करके उन वर्ड्स को रिपीट करना है। So these are all the ways by acting upon it we can improve our learning skills or writing skills, as well as both skills you can improve by these all methods. Now the questions you can now the question you can ask from me, that how I can ask all of these in the paper. So I will clear this thing. I can ask about the difference between clause and phrase, and I can give you a sentence and ask from you to separate the clause and separate the phrase. Okay. Or I can ask about that how you can improve your vocabulary building. I can ask that how you can introduce yourself formally or informally, or how you can improve any other person formally or informally. So this is the art. This is our first lecture that I am editing. It's there now and recording another lecture, as we will take 2 lectures daily. And I hope you will join this lecture, because if you join the lecture, so you can ask your queries and I can reply these queries. Otherwise, I just speak and you just listen, and we will meet in the final examination, and then I cannot reply your questions. Thank you.